Hey, dude, thanks for visiting. In this session, we are going to discuss the chapter-wise general aptitude, which we are continuing. Okay, this is the lecture 4 of chapter-wise general aptitude. Okay, and the questions are from CSRNet Part A PYQs. The questions from 2019 to 2014. We are solving in this lecture series, and not only the questions are from mathematical paper. Okay, the questions are from various papers of CSRNet mathematics. Okay, and in the previous 3 lectures we already covered the finding x problem. Number 2 is average problem, and number 3 is monetary problem. Okay, and you will get this 3 lecture series in the playlist of CSRNet Part A करके एक प्लेलिस्ट है नीचे, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड 2022 का पेपर्स भी सोल्यूशन अवेलेबल है, 2 पेपर्स, 2020 का भी पेपर्स पूरा के पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी टेक हियर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 to 2014. So in this lecture series we are solving the questions from probability and arrangement. Okay, there are total 25 questions from this chapter, probability and arrangement, in the paper 2019 to 2014. Okay, in this lecture, this is the part 1 of probability and arrangement. We solve in this lecture 12 questions from probability and arrangement. Okay, so let's start. And before starting, I am requesting you to all those who are new in my channel, so if the videos is helpful for you, then obviously what, give a like to this session, and consider subscribing to my channel. Okay, so let's start. So first we go through the overview or the simple definitions of probability. Probability of an event equal to number of favorable outcomes by number of possible outcomes. Okay. Permutation. What is permutation? A permutation is an arrangement. So this word is very important for permutation. Okay, of all or part of a set of objects with regard to the order of arrangement. Okay, and combination. What is combination? Combination is selection. So these two words are very important. Permutations means arrangement and combination means selection. Suppose you have to select one person from 4 person. Okay, so in that case we use combination. And suppose we arrange 2 people from 4 people, or this type of example. Okay, so in that case we use the permutation method. Okay, and we just go through the problems, and I think the problems is the best way to understand this permutation and combination. Okay, so let us start with question number 1. So this question from CSRNet 2019. Okay, A tells me I would be visiting you on any day of the next 2 months. So this line is important, next 2 months, and you must give me gold coins of as much total weights in grams as the number of days that would be elapsed from today. मतलब आज से, मतलब जितने दिन बाद में जाऊंगा उतने नंबर ऑफ जो है ग्राम्स का गोल्ड कॉइन मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। देखो सपोज कोई एक फ्रेंड और ए बी को बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट 2 महीने के अंदर, ठीक है। इफ gold coins are available in integer grams weight, then what is the at least number of coins with which B can meet A's demand on any day? That means क्या है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मिनिमम कॉइन्स रखना होगा, जैसे कि ए जब बी को मीट करे तो बी ए का जो मतलब डिमांड है वो पूरा कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा जो कि मैथमेटिकल कंसेप्ट है पूरा जो पूरा, एवरी इंटीजर कैन बी रिटेन in the power form of 2 or even number. Okay, suppose we can write 1, this is equal to 2 to the power 0. Okay, 2 this is equal to 2 to the power 1. 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, ठीक है। देखो 2 का रेस्पेक्ट में पूरा के पूरा हम इंटीजर्स को सेट को, मतलब इंटीजर्स का सेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा। नाउ यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में कितना डेट हो सकता है, इसको हम लोग एक बार देख लें, ठीक है। देखो इसका जरूरत नहीं है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्यों मतलब रोस्ट सिचुएशंस क्या हो सकता है, टोटल 31 डेज में मंथ हो सकता है, 31 डेज में मंथ हो सकता है, ठीक है। टोटल जो मोस्ट ऑफ द डेज हो सकता है तो ये हो सकता है 62। मतलब लास्ट डेट में जब मीट करेगा, यदि ए बी को लास्ट डेट में मीट करे तो टोटल ए को बी को ए के, मतलब बी को जितना कॉइन्स देना होगा ए को वो होगा 62, ठीक है। देखो ये हो गया
चीज। एंड ये जो 62 है, 62 को हम लोग पूरा के पूरा 2 के माध्यम से मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कॉइन्स लगेगा, ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1 ग्राम्स का कॉइन हो सकता है, 2 ग्राम्स का कॉइन हो सकता है, 3 ग्राम्स का कॉइन हो सकता है, 4 ग्राम्स का कॉइन हो सकता है, 8 ग्राम्स का कॉइन हो सकता है, एंड जो है 6 कॉइन टोटल होगा, 1 2 3 4 5 एंड 16 ग्राम का कॉइन हो सकता है, ठीक है। 1 2 नो 3 तो नहीं होगा, 3 नहीं, 4 8 16 एंड 32, ठीक है। ये जो टोटल कॉइन्स होगा 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। इस 6 कॉइन के माध्यम से हम लोग पूरा के पूरा 62 में 1 से 62 में जितना इंटीजर आएगा उतना इंटीजर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स वी नीड 6 पॉइंट्स। देखो यहाँ पर पूरा के पूरा ये जो सिस्टम है, ये 6 जो कॉइन्स यहाँ पर लिखा है ये पूरा के पूरा 2 के पावर में लिखा है। एंड 2 के पावर में लिखने का जो कारण है वो यही है कि ये जो सिस्टम है 6 कॉइन्स का, एटलीस्ट 6 कॉइन्स का, इस 6 कॉइन्स से पूरा के पूरा 62 तक जितना इंटीजर आएगा पूरा के पूरा उतना इंटीजर को हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका रीजन। So now going to the next question, question number 2, it says that multiple choice exam has 4 questions each with answer choice, 4 answer choice। जैसे कि ये CSI नेट का एग्जाम दो, देखो यहाँ पे 4 के 4 choice है। Every question has only one answer correct. The probability of getting all answer corrected by independent random guesses for each one. So this word independent is the game changer of this question. Okay, तो देखो एक आंसर के साथ दूसरा कोई आंसर का देने का कोई संबंध नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये ऑप्शंस का यहाँ पर 4 के 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन ही सोचो, ये 4 के 4 ऑप्शन है, 4 में से फर्स्ट ऑप्शन को मतलब राइट करने के लिए और आंसर देने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, सेकेंड का सिमिलरली 1/4, एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा ये पूरा के पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड का भी इंडिपेंडेंट मतलब 1/4, फोर्थ का भी 1/4, मतलब आंसर होगा 1/4, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट वर्ड है ना, यही इसका प्रॉब्लम का पूरा के पूरा गेम चेंजर। यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आंसर करेक्ट बाय द इंडिपेंडेंट, मतलब ये भी करेक्ट हो सकता है, 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 ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट जो होगा ऑप्शन बी होगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, it says that bag contains 8 balls, 8 red balls, 10 blue balls, 17 green balls. What is the minimum number of balls that needs to be taken out from the bag to ensure that at least one balls of each color? मतलब एक बैग में ये जो तीनों के तीनों नंबर ऑफ बॉल्स है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम बॉल्स वहाँ पर हम लोग टेक आउट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं टू एंश्योर दैट एटलीस्ट वन बॉल वी गेट 3 balls, ensure that at least one of each color, मतलब थ्री के जो 3 टाइप्स ऑफ जो कलर है वो एक एक एटलीस्ट हमारा हाथ में आए, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे रोस्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है 17, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8। तो रोस्ट जो सिचुएशन हो सकते हैं, फर्स्ट जो 17 बॉल निकला उसमें से एक भी बॉल ये दोनों कलर में से नहीं आया, ठीक है। तो 17 तो लेना ही पड़ेगा। सेकेंड और क्या हो सकता है, फर्स्ट तो 17 बॉल यहाँ पर ले लेते हैं, एंड ये जो प्रॉब्लम करने का टेक्निक है वो यही है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट बॉल यहाँ पर लेंगे, देन देखो ये जो दोनों बॉल रह जाएगा बैग में। सपोज जो रोस्टेस्ट सिचुएशन होता है, सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकता है, मतलब फर्स्ट 3 केस में तीनों के तीनों कलर आ गया तो बहुत अच्छा बात, तो वहाँ पे ही आप स्टॉप कर जाओगे। बट ये भी नहीं भी तो हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे रोस्ट जो सिचुएशन होगा, सबसे खराब जो सिचुएशन हो सकता है उसको लेकर यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो देखो पूरा के पूरा 17 बॉल निकालने एंड 17 के 17 ही ग्रीन बॉल आ गए, ऐसा सबसे खराब सिचुएशन होता है। देन जो नेक्स्ट 10 + 18 बॉल पड़ा है तो 10 बॉल ले सकते हैं जो कि एक भी रेड बॉल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड जो है रोस्टेस्ट सिचुएशन। तो 18 बॉल्स हो गया, नाउ ये दोनों बॉल तो आ गए, देन सिर्फ जो पड़ा है बैग में वो है 8 बॉल, तो यहाँ पर एक लेना काफ़ी है। तो यहाँ पे एक ग्रीन तो आ ही जाएगा, यहाँ पर एक ब्लू तो आ ही जाएगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक रेड भी आ जाएगा, तो 28 हो जाएगा इसका आंसर सी। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचो। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट अ डार्ट इज रैंडमली थ्रोन at a circular board on which 2 concentric rings of radii r and 2r having the same width
are marked. Okay, the probability of the dart hitting the smaller ring. Okay, so इसका जो मीनिंग है, ये सपोज वो जो हम मेला में देखते हैं ना, जो ये बंदूक से बैलून रखता है कुछ लोग, या जो मतलब एम करना पड़ता है, उस टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेम रेडियस है, इसका रेडियस सपोज आर, इसका रेडियस सपोज 2r। ठीक है, सो इट सेज दैट द डार्ट इज थ्रोन एट ए सर्कुलर बोर्ड which two concentric rings of radii this and this having the same width. Okay, so with same are marked. Okay, the probability of the dart of hitting the smaller ring. तो टोटल ये जो बड़ा रिंग है इसका यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो बड़ा वाला होगा उसका क्या होगा, 4 मतलब 2πr होगा। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू 2r। ठीक है, मतलब बड़ा वाला सर्किल का रेडियस है 2r, तो यहाँ पर होगा 4πr। एंड छोटा वाला का क्या होगा, मतलब ये इस छोटा वाला का इसका होगा सिंपली 2π इंटू स्मॉलर। ठीक है, नहीं हम यहाँ पे कैसे जाएंगे, एरिया से जाएंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस नहीं है पर एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, तो ये जो छोटा वाला होगा इसका एरिया होगा πr² एंड बड़ा वाला का क्या होगा पाई इंटू 2r², दैट मीन्स 4πr²। ठीक है, 4πr²। नाउ तो देखो ये जो होगा ये होगा बड़ा वाला रिंग का एरिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आउटर सर्किल का टोटल एरिया आएगा वो आएगा 4πr², बट ये तो ये भी कवर कर रहे हैं, तो ये इसको यहाँ से हटा देंगे एरिया को। ठीक है, तो कितना एरिया होगा, ये जो होगा बड़ा वाला सर्किल का वो होगा 4πr² माइनस छोटा वाला सर्किल का एरिया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, πr² मतलब 3πr²। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the probability that the dart is hitting the smaller ring. That means total probability कितना होगा, hitting the smaller ring, तो इसका probability होगा 3πr² टोटल। नो 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 नो, टोटल जो होगा पूरा के probability कितना होगा 4πr², ये होगा टोटल एरिया। ठीक है, एंड जो होगा छोटा वाला सर्किल का एरिया होगा πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर क्या होगा 1/4। ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर जो होगा 1/4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लार्जर, ये होगा इसका आंसर डी। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट ए कैनल सिस्टम इज शोन इन द फिगर, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी थ्रू two channels, gates G1 and G2. So this is the two gates G1 and G2. This is the path A to P. ठीक है, are operated independently to regulate the flow. Probability of G1 to be open is 10%, while the probability of G2 to be open is 20%. So what is the probability that water will flow from A to B? देखो वाटर फ्लो करेगा A to B में, जो आइदर इस गेट खुला रहेगा और इस गेट खुला रहेगा, और बोथ जो गेट्स वो खुला रहेगा, तो वाटर ए से बी की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी होगा, कोई भी मतलब एटलीस्ट 1 गेट ओपन होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ G1 एंड G2 इज ओपन, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्लोज्ड। ठीक है, बोथ क्लोज का प्रोबेबिलिटी यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एटलीस्ट 1 ओपन का प्रोबेबिलिटी चलेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1 माइनस जो ओपन का प्रोबेबिलिटी G1 का क्या है 10%, दैट इज 10/100। तो इसका क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी होगा 90/100। सिमिलरली G2 का क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 20 ओपन हो का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है, तो क्लोज हो का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 80/100, दैट मीन्स 8/10 एंड दिस मीन्स 9/10। तो 1 माइनस ये दोनों के दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/10 इंटू 9/10। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट गिवन में हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक है, ये सीधा के सीधा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है, लोग जानते ही हो आई थिंक। सो 1 माइनस इसका जो होगा 72 अपन 100 28 अपन 100, दैट मीन्स 28% होगा इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आंसर सी। Going to the next question, question number 6. It says that 12 balls, 3 of each color, that means 3 red plus 3 green plus 3 blue plus 3 yellow, ठीक है, 12 total balls are put in a box and mixed. If 3 balls are picked at random without replacement, the probability that 3 balls are of same color is, that means क्या होगा, फर्स्ट जो बॉल उठाएगा वो रेड होगा सपोज, सेकेंड भी रेड होगा, थर्ड भी रेड होगा। ठीक है, या फिर क्या सिचुएशन हो सकते हैं, टोटल 3 बॉल्स ही मतलब ग्रीन हो गया, ऐसा सिचुएशन हो सकते हैं। टोटल 3 प्रोबेबिलिटी ब्लू होगा, इसका सिचुएशन हो सकते हैं ब्लू प्लस ब्लू प्लस ब्लू, एंड तीनों के तीनों येलो भी हो, ये इसका भी सिचुएशन मतलब जो है 3 बॉल्स उठा रहे हैं हम यहाँ पे एंड सेम कलर का होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे एंड इसका भी निकालेंगे, एंड इस 4 के 4 जो प्रोबेबिलिटी आएगा उस 4 के 4 को हम शाम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो एक का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी आर प्लस आर प्लस आर, मतलब फर्स्ट भी रेड, सेकेंड भी रेड, थर्ड भी रेड, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। टोटल जो है देखो, टोटल बॉल से 12, उसमें से 3 एक निकल रहे हैं, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/12। देन ये जो है यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं बॉल जस्ट प्लस प्लस करके लिखा हूँ एंड इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3/n। नाउ यहाँ पे कितना बॉल पड़ा है 11, कितना रेड बॉल है 2। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड नाउ यहाँ पे टोटल कितना बॉल पड़ा है 10। ठीक है, एंड जो है एक ही रेड बॉल पड़ा है, मतलब 3 बार, मतलब फर्स्ट टाइम रेड आएगा इसका प्रोबेबिलिटी ये, सेकेंड टाइम रेड आएगा इसका प्रोबेबिलिटी ये, एंड थर्ड टाइम भी रेड आएगा इसका प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है, तो इसका जो केस आएगा टोटल सही है, ये आएगा 1/220। ठीक है, तो इसका भी 1/220, इसके केस में भी 1/220 आएगा, सेम केस, इसका केस में भी 1/220 आएगा एंड इसका केस में भी 1/220 आएगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 1/220 प्लस 1/220 प्लस 1/220 220 प्लस 1/220। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला है एक चीज, इफ 3 balls are without replacement, what is the probability that all 3 are of same color, मतलब तीनों लेके यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट 3 हो सकते हैं कि सेकेंड 3 हो सकते हैं, मतलब सेम कलर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/55, आंसर डी। ठीक है, now going to the next one, it says that how many different salads can be made from the cauliflower, tomatoes, onions, potatoes and carrots। so टोटल यहाँ पर 5 वेजिटेबल है। ठीक है, तो 1 वेजिटेबल को लेकर बना सकते हैं ओनली 1, 2 को लेकर बना सकते हैं ओनली 3 को लेकर बना सकते हैं, 4 को लेकर बना सकते हैं एंड 5 वेजिटेबल्स को लेकर भी बना सकते हैं सलाद। ठीक है, तो मतलब 1 वेजिटेबल्स ओनली होगा, तो इसका जो यहाँ पर क्या है देखो सिलेक्शन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर सिलेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अरेंजमेंट, सॉरी यहाँ पर होगा कॉम्बिनेशन, मतलब 5C1, 5 में से 1 ले रहा है, 5 में से 2 ले रहा है, 5 में से 3 ले रहा है, 5 में से 4 ले रहा है, 5 में से 5 ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है सिलेक्शन, इसलिए यहाँ पर यूज हो रहा है क्या, अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंज करना, सॉरी सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो होगा 5, ये होगा 10, ये होगा 10, 5C4 का थिंक इसका भी बोलते हैं कितना 5 और 5C5 का 1, इसका आंसर हो जाएगा टोटल 31 टाइप्स होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाद यहाँ पर मेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। Now going to the next question, question number 8, it says that out of 6 unbiased coins, 5 are tossed independently and their all results are in heads. If 6 now is independently tossed, the probability of getting head is, so this is a very basic and very easy और easiest problem of season है। तो देखो यहाँ पर 5 टॉस इंडिपेंडेंटली हुआ है एंड 6 टॉस भी इंडिपेंडेंटली हुआ है, तो इस
फर्स्ट 5 जो रिजल्ट आया है उसके साथ 6 रिजल्ट का कोई संबंध नहीं है। यू सिंपली सी, एक जो है कॉइन में इधर होता है हेड और होता है टेल। हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो होता है 1/2, टेल आने का भी 1/2, ठीक है। तो इसका 6 जो टॉस्ट होगा वो गेटिंग हेड, इसके पहले जो रिजल्ट है उसके साथ कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल हाफ। इफ इस क्वेश्चन को यहाँ पर हेड के जगह टेल लिख दे, ठीक है, तो भी आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9, इट सेज दैट two students are solving same problem independently if the probability that the first one solves the problem is 3/5 and the probability that the second solves the problem is 4/5, then what is the probability that at least one of them solve the problem, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट स्टूडेंट ए एंड सेकेंड स्टूडेंट बी, तो यहाँ पर निकालना क्या है, आइदर वन ऑफ देम, तो दैट मीन्स आइदर ए सॉल्व कर रहे हैं एंड बी सॉल्व नहीं कर रहा है ये, और मतलब यहाँ पे प्लस होगा, ए सॉल्व कर रहा है एंड बी नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर निकालना है, ठीक है। मतलब ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, बी कर रहा है, ये हो गया एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इससे हम निकाल सकते हैं आइदर, और कैसे निकालेंगे यहाँ पे, टू ऑफ देम इफ बोथ डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड 1 माइनस वी राइट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रखेंगे क्या, जो बोथ स्टूडेंट्स ए एंड बी है और सपोज 2 स्टूडेंट्स है, वो दोनों के दोनों ही सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जैसे हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में सॉल्व किया सिमिलर प्रोसेस, तो यहाँ पे ए प्रोबेबिलिटी मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/5, एंड सिमिलरली जो बी और सेकेंड स्टूडेंट है उसका क्वेश्चन सॉल्व ना करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/5, ठीक है। तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वो दोनों के दोनों मतलब दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पर रखेंगे एंड 1 माइनस करेंगे उस प्रोबेबिलिटी को, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है ये यहाँ पर 2/5 इंटू 1/5, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये दोनों के दोनों में से एक भी सॉल्व नहीं कर पाया, एंड 1 में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 2/25 तो आएगा 23 अप टू 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, एंड इस फॉर्मूला से आप करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा PA कम्प्लीमेंट प्लस PA कम्प्लीमेंट इंटू PB, यहाँ पर पुट करो सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो देखो PA मतलब 3/5 इंटू 1/5 प्लस PAC मतलब 2/5 इंटू 4/5, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3/25 प्लस आई थिंक मैं कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा तो 3/25 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो वीडियो बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि स्किप कर देते, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन मैं डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 सेज दैट इन ए ग्रुप ऑफ 11 पर्सन्स ईच शेक्स हैंड विथ एवरी अदर वन एंड ओनली वंस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच हैंडशेक्स। तो हैंडशेक्स वाला प्रॉब्लम का सीधा सीधा आंसर यही होता है कि देखो एक जो ए है ये वो बाकी 10 लोगों के साथ हैंडशेक करेगा, ठीक है। तो ए के साथ मतलब सब के सब का हैंडशेक हो गया, तो बी जब करेगा तो ए के साथ हैंडशेक नहीं करेगा, क्योंकि ए एंड बी का हैंडशेक हो गया, तो बी बाकी 9 लोगों के साथ करेगा। सिमिलरली सी ए एंड बी के साथ नहीं करेगा, ए को नहीं करेगा एंड बी को भी नहीं करेगा, तो यहाँ पर बाकी रहते हैं 8। मतलब ये जो आंसर होगा 11% होगा, तो इसका साम्स होगा 10 + 9 + 8 + अप टू 1, 10 + 9 + 8 + up to 1, that means this is the sum of first 10 natural numbers and which is equal to 10 into 10 + 1/2 is the formula, n into n + 1/2, so 55 is the answer, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ 3 इंग्लिश लेटर्स वर्ड्स
हैविंग एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट बट नॉट हैविंग टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सोनेंट, मतलब सी कॉन्सोनेंट एंड बाकी जो रहेगा मतलब भावेल रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है देखो एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट रहेगा ही एंड टू कॉन्सोनेंट कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, मतलब सी सी बी ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा या भी सी सी ऐसा सिचुएशंस भी नहीं बनेगा। तो कितना सिचुएशंस बन सकता है, सी भी सी बन सकता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट 2 है, भावेल 1 है, कॉन्सोनेंट 1 है, भावेल 2 है, भावेल 2 है, कॉन्सोनेंट 1 है। एंड और एक क्या सिचुएशंस बन सकता है, सी भी बी एंड जो हो सकता है कॉन्सिक्यूटिव तो कॉन्सोनेंट नहीं बनेगा, मतलब सी भी सी भी सी भी, ये भी एक हो सकता है, ठीक है, भी सी। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, सी को यहाँ पर कॉन्सोनेंट चूज करने का कितना तरीका है, मतलब हम जानते हैं कि हम लोग का जो अल्फ़ाबेट सिस्टम है वहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट है एंड 5 भावेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट 21 तरीका से चूज हो सकता है, भावेल 5 तरीके से एंड जो सेकेंड कॉन्सोनेंट होगा वो 20 तरीके से, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा 21 + 5 + 4 आएगा, क्योंकि 5 फर्स्ट भावेल देन फोर्थ भावेल जो है पढ़ाएगा, तो यहाँ पे 4 चॉइस हो सकता है। एंड सिमिलर यहाँ पर आएगा 5 × 4 × 21 एंड यहाँ पर आएगा 5 × 21 × 4, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पर 5 भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर यही नहीं बोला है कि जो है कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं हो सकते, कॉन्सोनेंट रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 लेके ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मतलब भावेल से वो रिपीट नहीं करेगा ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बोला है। सपोज यहाँ पर लिखा है ई सी ई, 2 भावेल एक ही लिया, मतलब यहाँ पर भी 5 चॉइस है, यहाँ पर भी 5 चॉइस, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे एंड सम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3780, ठीक है। 21 5 21 यहाँ एंड यहाँ पर भी 21 ही होगा ऑब्वियस, ठीक है। तो इसका सम करेंगे एंड प्रोडक्ट एंड सम करेंगे तो 3780 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज a job interview is taking place with 11 male and 17 female candidates. Candidates are called randomly. What is the minimum number of candidates to be called to ensure that at least 2 males or 2 females having interviewed? तो हम इसको ऑप्शंस को लेकर करेंगे, मतलब मिनिमम आंसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम मोस्ट कितना है 2, ठीक है। तो 2 को यहाँ पर लेके चले तो क्या आ सकता है, 2 में से क्या क्या हो सकता है, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, या तो 2 ही मेल हो सकता है या तो 2 ही फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 2 मेल्स, आई थिंक इस प्रॉब्लम को मैंने गलत लिखा है कुछ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, देखो तो ये केस होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ये केस होगा तो भी हो जाएगा, बट ये जो केस आएगा एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, तो ये जो कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर नहीं होगा, तो 3 लेके चलते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 लेके चलेगा तो क्या आएगा, एक फीमेल एक मेल सॉरी एक फीमेल प्लस 2 मेल आ सकता है और 2 फीमेल प्लस एक मेल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो दोनों केस बनेगा और तो कोई केस नहीं बनेगा, तो ये जो केस बनेगा यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेल्स और 2 फीमेल्स, तो यहाँ पर देखो एटलीस्ट 2 मेल्स और एटलीस्ट 2 फीमेल्स, तो ये जो 2 केस है यहाँ पे जो बोथ केस आएगा वहाँ पे ये जो कंडीशन है एटलीस्ट 2 मेल्स और एटलीस्ट 2 फीमेल्स, ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब मिनिमम 3 लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, तो हम लोग बता सकते हैं जो कंडीशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम 3 पर्सन्स का इंटरव्यू देखना ही पड़ेगा, ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो आज यही है लास्ट क्वेश्चन। सो if the session is helpful then obviously give a like to this session, and in the next lecture we take the remaining 12 or 13 questions from probability and
arrangement. Okay, so if these sessions are helpful for you, and this is the fourth lecture of chapter wise general aptitude. So if the sessions are helpful, then obviously give a like to this session, and obviously subscribe the channel. Okay, thank you. See you again in the next video. Thank you.